Other days we are not liable to anything, but on examination we are liable. Every day we do not go with that examination cycle. We just study, right? But at the time of examination, because we are not habitual with the examination, for each convert into disease. And when you are disease, your body lose the power, energy, right? And you feel lethargic. In that lethargy, most of energy consumed to normalize you, right? So that same thing happens in the examination. Most of your energy consumed to normalize you because you are not normal. So the energy which should consume to recall the memory consumed by the body to get normal. Because every day we are not habitual to that these circumstances of examination. और यही सबसे बड़ी चीज एग्जाम में प्रॉब्लम करता है, दैट जैसे एग्जाम खत्म होता है एंड व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द एग्जाम, आप कॉपी, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर दोबारा देखो, बुकलेट, आप देखो अरे ये तो मुझे आ रहे थे, अरे ये पॉइंट कहां गया, वेयर इज दिस पॉइंट? बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम तुम्हारा माइंड वर्क नहीं कर रहा, तुम्हारा माइंड दो चीज पे काम, फर्स्ट आई नीड टू कंप्लीट द पेपर, तुम फटाफट कंप्लीट में लगे हो, दूसरा आप अटेम्प्ट में लगे हो, आप जैसे भी माइंड में आ रहा है, बिकॉज योर माइंड इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन दैट वे दैट क्वेश्चंस आर ऑर्गेनाइज्ड, राइट? बिकॉज वी रीड फ्रॉम बुक्स, वी डू नॉट कन्वर्ट बुक्स इनटू क्वेश्चंस. So at the time of examination, first our mind reads something, then whatever we studied, it tried to organize it according to the question. That process takes time, but we don't have time. So what we do, with the cooking we serve. चीज बन रहा है, हम सर्व कर रहे हैं, तो वो आधा कच्चा है आधा पक्का है. It's not accomplished yet, but time नहीं है. Because we are lacking time. क्यों? क्योंकि we are not acclimatized to that time boundary, that time limit. प्रॉब्लम एग्जाम का नहीं, प्रॉब्लम हमारी मेंटालिटी का है, और ये एक बार नहीं होता है. क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी. अब अगर तुम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो ना, तुम्हें लगेगा ये क्या था, ये तो एसी रॉय था, ये तो ये था. क्वेश्चंस आर दोज ओनली what you have already studied for an hour, 2 hours, 4 hours, 6 hours at home in revision also. बट वो सिस्टम नहीं बन पा रहा है. वाई सो? क्योंकि हमने खुद को बैठ के नहीं कहा कि चलो वॉट एवर आई हैव स्टडीड, अब इसको कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, इन टर्म्स ऑफ दिस, एंड व्हाट इज द रेलिवेंसी ऑफ दिस इन प्रेजेंट एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, राइट? If I talk about the caste system, we were discussing about the case studies or caste studies, right? So caste studies has been studied by various anthropologists. If someone asks you now what are the relevancy of those caste studies in today's India, right? अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कास्ट सिस्टम की. So they people told about the origin of caste, characteristic feature of caste, right? What are the correlation between caste and kinship, caste and power, right? Caste and authority, dominant caste, Jajmani system, right? Caste tribal continuum. So what are the relevance in today's Indian society? So we know that the caste is all about three things: stratification, first thing; restriction, second thing, right, which is very much important. Stratification, second is restrictions, and third is about हायरार्की, राइट? ये एक सिस्टम है, एंड क्लोज्ड, एंडोगेमस, राइट? सो दिस इज अबाउट द कास्ट. फर्स्ट वी से इट इज स्ट्रेटिफाइड, राइट? सो वी गो दैट इन प्रेजेंट सिनारियो what society we have, how caste system is affecting the whole society, because we know that we have two different types of system, caste and class, right? But caste is always superimposed on the caste. Caste is always superimposed on the class, right? But sometimes what happens nowadays, class is always already a prominent thing, irrelevant to caste. Anybody can be a class system, right?
So nowadays, class and caste both are relevant to all together. Not earlier to this. Earlier, caste was dominant on each and every sphere of society, irrespective to class. In class, you will see in the higher caste only, not the lower class, due to deprivation of economic resources, political things. Now things have been changed after independence. Constitutions gave liberty. Democratic politics is everywhere, from the center to villages. Everywhere you have democratic institutions, and democratic institutions, what they did, they imparted the value of equality, justice, fraternity, right? Now things have been changed, right? This hierarchical system, the stratification, the whole equation has been changed. So now if we see the question, right, say if I am going with the question of caste system, I will definitely discuss about the present scenario, about the caste and policy. Do you think that caste affects politics or politics affects the caste system? Right? Both are right. What is politics and what is polity? If I talk about polity, I talk about democracy. If I talk about politics, I talk about the functionary. Politics is a word where caste is used. Right? Caste is used. Polity is a word where democracy is used. So both are contrary to each other, polity and politics. Polity is about the structure. Politics is about the functional, and not in positive way functional. I will take about the politics. So politics is not always a humble word for all those people, right? So when you study anything, just do one thing. Try to convert things in questions also. So at the time examination, you could feel each. Right? I always used to say, feel each. Then your mind will work. गाय को डंडा दिखाने से गाय दूध नहीं देती, गोबर देती है. Clear? If your mind is not relaxed, ये क्या करेगा? वही होता है हमारी एग्जामिनेशन की कॉपी में. बिकॉज ये ईज नहीं है, प्रेशराइज्ड है, प्रेशराइज्ड बाय मेनी फैक्ट्स. लुक, एक चीज आप अपने आप को जरूर कन्वे करो, दैट आई कैन स्टडी अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ये नहीं कि मुझे सब कुछ पढ़ना, यूपीएससी भी नहीं कहता. क्वेश्चन आंसर का डेली 2 आवर्स मिनिमम तुम्हारे पास होना चाहिए. ये एक नियम है इस सिस्टम का. 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस, बिकॉज फाइनली इन यूपीएससी दे वांट क्वेश्चन एंड आंसर्स ओनली, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, वर्बल. तो मैं हमेशा बोलता हूं, इफ एवरी डे you complete the cycle of UPSC in your study, you are preparing for the exam. Otherwise, you are just attaining the information, not knowledge actually. Hi, information only. And information is not the thing which is needed by the examination. They want knowledge, processing and understanding of the exam. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एग्जामिनेशन हर बार ये होता है. और दूसरा बड़ा चीज व्हाट वी डू आफ्टर एनी टेस्ट, प्लीज एनालाइज योर परफॉर्मेंस. घर जाओ, वॉट एवर यू परफॉर्म्ड, प्लीज एनालाइज इट, कि मैंने जो लिखा है मेरे हिसाब से मैं कितना सेटिस्फाइड हूं, हाउ मच आई एम सेटिस्फाइड विद माई ओन परफॉर्मेंस, what problems I have faced, right, during the exam. Lack of words, lack of knowledge or information, time problem, right, problem with the thought, right, what I was lacking of, that is very important, right. In this way, next time you can work better. If you go with the proper management theory, right, keep a diary with yourself, keep a note with yourself, okay, in this exam I made these things good, I performed better than last exam, and these were the mistakes what I repeated, committed again, these were the blunders I made, these I could better.
वो पॉइंट्स है, डेली सुबह उठ के उन पॉइंट्स को देखो एंड देन प्रैक्टिस अगेन, राइट? और उस पे काम करो। 1 मिनट प्लीज। बेटा we always used to say one thing, na, that time management is the key, right? I used to say one thing only: time is already managed. We need not to manage the time. We need not to manage self with the time. So it is self management, not time. And time is already managed, right? So for 4 questions, we had 1.5 hours. First, divide that. Second, work one by one. Say how much you can write, right? Add that to the word limit. बहुत important होता है. The mentality to win. That is very important for a student. Mentality to win, not to perform only. We are not here to perform only. If you go with the better players, better athletes, they always work to win, not to perform only. कि हमको जाके ओलंपिक में हिस्सा लेना, नहीं. They are there to perform properly. They are there to perform only. So not to perform, to win. ये बहुत बड़ा की है लाइफ का कि when you write an answer, when you are in examination, when you study, what your mentality is. 90% हम एग्जाम देने आते हैं उन सैटरडे के, अरे आज एग्जाम देना है, सैटरडे है, चलो चलते हैं एग्जाम देते हैं. नॉट कि आई एम गोइंग टू टॉप द क्लास टुडे, राइट? सो मैं एक छोटी सी बात तुमको ये कहता हूं कि व्हेन यू स्टार्ट विद द थिंग ना, पहले अपनी मेंटालिटी को चेंज करो. परफॉर्मेंस मेरे लिए या आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स यू हैव परफॉर्म्ड अ लॉट, बट परफॉर्म विद व्हाट मेंटालिटी? क्योंकि व्हेन यू विल से आई वांट टू विन, तो तुम्हारे लिखने में चेंज आ जाएगा. बिकॉज यू विल डू समथिंग. यू स्ट्रेस इज वेरी गुड, डी स्ट्रेस इज नॉट गुड, बट यू आर टेकिंग स्ट्रेस फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, इट्स ऑलवेज गुड. आप अपने कहो कि आज के दिन में 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, 15 मिनट बस, और आज मैं 15 मिनट ज्यादा रिवाइज करूंगा. मेरा एक थ्योरी होता है कि व्हेन आई एम हियर टू टीच यू ना, मैं 2 चीज परफॉर्म करता हूं. फर्स्ट, आई एम हियर टू परफॉर्म यू. मुझे लगता है कि आई एम द लास्ट पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म हियर, राइट? मेरा परफॉर्म तुम्हें आईएएस बना भी सकता है, रोक भी सकता है. तो आई गिव माई सेल्फ चैलेंज कि मुझे इनको सेलेक्ट करवाना है. सो आई गो विद माई बेस्ट. I go through all the books, all the notes, all the journals, right? चाहे वो ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, मैन इन इंडिया हो, I go to everything. कोई भी नई चीज आई है क्या, किसका कौन सा नया काम आया, what are things that, right? Because what I feel that you are devoting your life here. तो मुझे उसके लिए तैयार होना है कि that I am here to decide one thing in your life, and that is very crucial. Same thing we should be also. When you come to the class, you are devoting your life to me or any faculty. उस समय इतने सजग रहो कि a single question, a single line can change my world. एक लाइन एक क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी में, बट वी नेग्लेक्ट. हम पूरे टॉपिक पे फोकस करते हैं, नॉट ऑन लाइंस. क्वेश्चन लाइन से आता है, टॉपिक से नहीं आता, राइट? यूपीएससी नोज दिस थिंग. मेंस टॉपिक बेस्ड आएगा, प्री लाइन बेस्ड आएगा. सो बट व्हाट वी डू, वी गो विद द ब्रॉडर वे. हमको ब्रॉडर वे याद रहता है, हमको लाइंस याद नहीं रहता है. यूपीएससी लाइंस पे खेलता है, प्री में टॉपिक खेलता है, मेंस में, और ओवरऑल खेलता है इंटरव्यू में, राइट? सो अंटिल अनलेस यू कवर द इंटायर थिंग, टीचर की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम 16-17 ईयर्स एक्सपीरियंस, राइट? सो उसको बहुत केयरफुली वॉच करो. उससे एक फायदा ये होता है कि अगर तुम केयरफुली वॉच कर रहे हो, लाइंस पे डिस्कस कर रहे हो, नेक्स्ट डे your faculty will also focus on lines, not on topics only. Otherwise for me topic is important because you are covering the topic only. तो मेरा फोकस किस पे होगा?
ऑफ कोर्स द टॉपिक, व्हाई आई विल कंसीडर द लाइंस, मैंने एक टॉपिक लिखा है, तुमको फटाफट बोल दिया, कवर कर लो। बट इफ आई गो विद द लाइन, मान लो हर लाइन एक क्वेश्चन बना रही है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर क्वेश्चन कौन सा लाइन बना रही है, कौन जानता है, तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। एनी लाइन कैन फ्रेम अ क्वेश्चन इन यूपीएससी, सो बी अवेयर अबाउट द लाइन्स एंड वर्ड्स। यूपीएससी तो वर्ड उठा लेती है, सेकुलरिज्म मीन्स, डेमोक्रेसी मीन्स, पैटर्निटी मीन्स, तो जो एक लाइन पे, एक वर्ड पे क्वेश्चन बना सकता है, तो तुम सोचो वर्ड कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे। बट हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है, हर 8 मिनट्स के बाद में कन्वर्ट होता है। वैसे 2.5 मिनट्स का साइकिल होता है कंसंट्रेशन का, जिसको आप बढ़ा के 5 मिनट्स कर सकते हो, फिर 10 मिनट्स करते हैं, उसका माइंड घूमता है, 2.5 कंसंट्रेट करोगे फिर घूमेगा। अपनी साइकिल का ध्यान रखो कि आप क्लास में कब होते हो और रिलैक्स माइंड में कब जाता है, क्लास में कब होते हो, वो साइकिल ध्यान रखो। इट इज ऑल अबाउट द अटेंटिव नेचर ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। फैकल्टी की प्रॉब्लम क्या, बच्चे अटेंटिव नहीं होंगे तो फैकल्टी का माइंड वैसे घूम जाएगा। वो देख रहा है बच्चे हैं, तुम अपनी बात कर रहे हो, तुम अपनी बात कर रहे हो, वो पढ़ा रहा है, फिर वो तुमको बार बार बोल रहा है, अरे सुनो। इट मीन्स क्लास इज नॉट अलाइंड, बोथ आर नॉट ऑन दी सेम प्लेटफॉर्म, नॉट सिंक्रोनाइज्ड कंप्लीटली। और ये ऑर्केस्ट्रा है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उतना अच्छा परफॉर्म करेगा जितना सब मिलके परफॉर्म कर रहे हैं। एक का गलत राग पूरी क्लास बिगाड़ देगा। क्लास में आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिपेयर फॉर द क्लास। एज वी प्रिपेयर, यू नीड टू प्रिपेयर कि फैकल्टी इज गोइंग टू टीच मी समथिंग, हाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट टीचिंग। मेरा रिस्पॉन्ड क्या होगा? आज मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिस्पॉन्ड करूंगा, टीचिंग के थ्रू। तो जरूरी है कि जो टीचर पढ़ के आए उतना टीचिंग आपका भी होना चाहिए स्टडी, ताकि आप कंपेयर कर सके कि मेरी स्टडी में क्या ऐसा है जो इनके पास एक्स्ट्रा आ रहा है। इट इज ए गुड थिंग कि आप प्री लर्नर हो। जैसे आप कभी देखो क्रिकेट में, वो बैट्समैन अगर बैटिंग करने उतरता है तो पहले वार्म अप कर रहा होता है बाहर, वो काफी देर का बॉडी को वार्म अप करेगा, क्योंकि उसको मालूम है सीधा आते उठाया और मस्कल्स पे स्केच आके गया, क्रैम्प कभी भी आ सकता है। तो बी विद दैट, चीजों को सिंपल लो। ये ऐसा नहीं कि कोई खिलाड़ी में क्षमता है हर एक में 100 मारने की, या कोई बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गलत तो सही सबका टाइम आता है। शुभमन गिल बहुत आईपीएल में अच्छा खेल रहा था, अब देखो 5 टेस्ट सीरीज में, 1 अभी जो T20 का हुआ, एक मैच में खेल पाया, 4 में चला ही नहीं, टेस्ट में T20 में नहीं चला, टेस्ट में नहीं चला। इट हैपन्स फॉर एवरीबडी, बट इट डजंट मीन कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इट मीन्स मेंटेलिटी अभी भी और परफेक्ट होना जरूरी है, इंप्रूव होना जरूरी है। सो ग्रो अप, डोंट थिंक अबाउट परफेक्शन, ग्रो अप एवरी डे। Perfection is dead. Nobody is perfect in the world, and UPSC does not want perfect people. 50% India topper है, 55% India topper, 60% India topper. So थोड़ा सा मेंटालिटी पे काम करो। एग्जाम इज ऑल अबाउट यू, योर ईजनेस। ईज रहो, एग्जाम देते समय इतने ईज होने चाहिए कि तुम्हें लगे घर पे बैठा अपने पेपर सॉल्व कर रहा हूं। इतने ईज होने चाहिए एग्जाम के टाइम, राइट? तब जाके पेपर का लेवल पकड़ पाओगे। ये पेपर उन लोगों के लिए जो कंफर्टेबल है, उनके लिए नहीं तो डिस्कंफर्ट है। बीमारी वाले के लिए दवा होती है, राइट? उनको आराम करने के लिए कहा जाता है, काम करने के लिए नहीं कहा जाता। सो इफ यू आर इन दिस ईज, आप काम मत करें। 90% टाइम बच्चा डिसीज में होता है, ईज में नहीं होता। तो कोशिश करो ईज पैदा करने की। ईज पैदा करने का तरीका क्या है? इफ समोड आके बोलते सभी ईज कैसे करें, कैसे करें ईज? बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टिक विद दी प्रॉपर थिंग्स, सिंपल मटेरियल, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, राइट? सिंपल मटेरियल, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और प्रॉपर रिवीजन एंड रेस्ट। आप सिंपल सिस्टम समझो ना कि इफ यू आर गोइंग टू ए जिम में इक्विपमेंट कितना तगड़ा बनाओ डिपेंड नहीं करता, तुम एक्सरसाइज कैसे करते हो डिपेंड इस पे करता है। अगर सिंपल लोहे का भी बना होगा ना तो इट्स ओके, उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस चीज का बना है, तुम्हें बस सही प्रॉपर एक्सरसाइज करना आना चाहिए। तो यहां पे टेक्निक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि स्ट्रक्चर के। आप थोड़ा सा ईज रह के काम करो। जैसे मैंने बताया,
पहले से डिटरमाइन होना चाहिए कि मेरा टाइम कहां फिक्स है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने तुम्हें कहा टाइम सबके लिए वही 24 आवर्स है, यूटिलाइजेशन का खेल है सारा। आप पहले से टाइम के साथ कंफर्ट होने चाहिए। किसी भी चीज में आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलो कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है, आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है। सिंपल फॉर्मूला बनाओ। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है, तो मैं दिन में 4 घंटे का टाइम टेबल बनाऊं, राइट, और मैं 6 घंटे पढ़ूं, बजाय कि 6 घंटे का टाइम टेबल बना के फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा, राइट। मेक शुरू में आपकी स्टडी का लेवल जो मैक्सिमम टाइम उसको लो रखो। आपको 2 आवर्स के 3 बनाने, तो आप 3 आवर्स को माइंड रख के 2 आवर्स के 3 बनाओ। आपने ये 2 आवर्स कवर कर लिए, बहुत बढ़िया। आपने कहा मैं 1.3 पढ़ सकता हूं, आप 2 पढ़ गए, अपने खुद को शाबाशी दो। फिर 2 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो। कहो मन में कि मैं 4 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, पर पढ़ो 6 आवर्स। अ बूस्ट टू योर माइंड कि नहीं आज मैंने अच्छा किया, आज मैंने अपने तय से 1.5 आवर ज्यादा पढ़ लिया, मैं अच्छा हुआ। इट हैपेंस गुड टू मी, राइट, एवरीथिंग गोइंग फाइन। दूसरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन होना चाहिए टू द पॉइंट। सिलेबस का, सिलेबस में क्या है तुम्हें पता होना चाहिए, बस वहीं तक स्टडी रखो। और स्टडी में करना क्या, हमको बेसिक कवर करना है, राइट, हमको बेसिक के बाद में करंट का पार्ट कवर करना है, और तो ये बेसिक हो गया, करंट हो गया, और इन दोनों को मिला के कंसेप्ट या अंडरस्टैंडिंग कवर करनी है। ये तीनों पार्ट कवर करने हैं मुझे, बेसिक हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और बेसिक और अंडरस्टैंडिंग को मैंने करंट के साथ मिक्स कर लिया। तो बेसिक के लिए आपके पास एनसीईआरटी है, करंट के लिए न्यूज़पेपर है, राइट, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास फैकल्टी है, रिवीजन है और क्वेश्चन है। तो तीनों चीजें अपने पास रखो, एक एनसीईआरटी बुक्स रखो, एक फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही वो, रिवीजन और क्वेश्चन, और एक अपना करंट का पेपर, सिंपल, और साथ में कोर में रहना चाहिए सिलेबस। तो सिलेबस यहां था, बेसिक लिया, अंडरस्टैंडिंग और ये। तो कोई भी टॉपिक उठाया सबसे पहले उसका बेसिक समझा। बेसिक मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, राइट। फिर इसके अंडरस्टैंडिंग पे आए जो आता है हाउ एंड व्हाई। फिर आती है इसकी रिलेवेंसी, वो आएगा करंट वाला पार्ट। क्वेश्चन ये ट्रायोलॉजी बनाता है, इस 3 वर्ग का, बेसिक, सेकंड कंसेप्ट क्लियरिंग और अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा होता है रिलेवेंस टू द प्रेजेंट और करंट सिनेरियो। तो व्हेन यू राइट आंसर, ये चीजें आनी चाहिए, राइट। इफ समवन आस्क यू अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, आपको पहले पता होना चाहिए कि पॉवर्टी का इंडिया में डेफिनेशन क्या है, एस्टिमेट क्या है, आज क्या है। तो पहले वहीं से स्टार्ट होते पॉवर्टी इन इंडिया, राइट, वेरियस प्रोग्राम्स। फिर पॉवर्टी के लिए इंडिया में चैलेंजेस क्या है, आपने कहा दीज आर द चैलेंजेस, राइट। अब उन चैलेंज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, व्हाट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डन, बट उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम्स रह गई है, ये रह गई है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। नाउ द करंट सिनेरियो विल बी देयर, ये कर सकते हैं, ये चल रहा है, ये एस्टिमेट है, गवर्नमेंट ये कह रही है, बात खत्म हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग आंसर। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। तो पूरे दिन का प्रोग्राम जो है वो इसी फॉर्म में आपका बनाएगा कि आप मॉर्निंग में उठते हो, उठते में सबसे पहले बेसिक पकड़ो, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग पकड़ो, और फिर न्यूज़पेपर लो, ताकि देख लो जो मैंने पढ़ा है वो कहीं रिलेवेंट हुआ क्या। न्यूज़पेपर सबसे पहले नहीं, सबसे पहले कोई टॉपिक लो, ये आया। हम लोगों के लिए न्यूज़पेपर सुबह के लिए नहीं बना है, हम लोगों के लिए बना है अपने सिलेबस के साथ कोरिलेशन में। आपने इसको ढंग से कर लिया, उसके बाद में आपने क्या किया, इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन बनाया डिस्क्रिप्टिव। आपका एक दिन का काम हो गया। अपना खुद का सेल्फ स्टडी, एक स्टडी होता है विद द क्लास। विद द क्लास में क्या है, वॉट एवर मटीरियल यू हैव, क्लास में आने से पहले उसका प्री स्टडी हो गया, क्लास में उसका मेन कोर स्टडी हो गया, और घर जाके उसका रिवीजन स्टडी हो गया, एंड देन रिलेवेंट क्वेश्चंस। ये हो गया क्लास, ये है रिवीजन।
और एक होता है न्यू एस्पेक्ट, किसके बाद क्या आएगा, उसकी प्री तैयारी, प्री प्रेप, जिसमें सिर्फ बेसिक बुक्स पढ़नी है और मटेरियल। दीज 3 पार्ट, एक जो चल रहा है क्लास में वो वाला पार्ट, एक सो डेली का अपना क्या है, सुबह उठे एक टॉपिक उठाया अपने हिसाब से जो आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया और देख लिया कि करंट में उसके साथ क्या है। एक जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका प्री स्टडी कर लिया, क्लास में आके सर के साथ डिस्कस किया, घर जाके उस पर क्वेश्चंस देख लिए। तीसरा टॉपिक कौन सा बनाया कि जो आने वाला है, नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक उसको माइंड में रख लिया, उसकी एनसीईआरटी साथ में पढ़नी स्टार्ट कर दी। सो बाय द टाइम व्हेन द टॉपिक विल स्टार्ट, नाउ यू आर वेल अवेयर अबाउट द बेसिक्स। So now when class will start with the things, you are very much aware कि क्या चल रहा है, what is going on, what the basic is there. Say I'm going to start कि अब आपके like geography, physical now geography India start होगा. So first Indian geography आपने पढ़ना start कर दिया. You are well aware about that, right? क्या मुझे अगला टॉपिक ये लेना है. पॉलिटी चल रहा है, नेक्स्ट में क्या आएगा, फिर साइंस एंड टेक है तो साइंस में क्या चलेगा. एक वेल अवेयर पैटर्न से तैयारी करो, ईज में रहोगे. अदरवाइज डिजीज बाद में आ रहा है बार बार. और ये ध्यान रखो, डेली क्वेश्चन बनेगा तो ऑन सैटरडे यू आर फ्री. आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, यू आर फ्री. आप आराम से तैयारी करोगे.